الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا غالبين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے سورہ انعام آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی اور اس میں جو باتیں ہوتی تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی جاتی تھی۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ سورہ انعام یہ سورہ تکمیل کو پہنچی، وہ سورہ مکمل ہوئی اور آج آپ کے سامنے چند آیات 7 آیتیں تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ اعراف کی ہیں۔ سورہ اعراف یہ سورہ انعام کی تشریح اور تفصیل ہے۔ جو باتیں اجمالی طور پر اجمال کے ساتھ سورہ انعام میں بیان کی گئی تھی، اب ان باتوں کی تشریح، ان باتوں کی تفصیل اس سورے میں بیان کی گئی ہے۔ گویا یہ سورہ اس سورے کا تکملہ ہے اور اس کی تفصیل ہے، اس کی تشریح ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی صرف 8 آیتیں ایسی ہیں
جو مکہ میں نہیں نازل ہوئی، باقی پوری سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع ہیں اس سورہ میں، اور 206 آیتیں ہیں اس پوری سورہ میں، 206 آیتیں، اور 3344 اس میں کلمات ہیں، جیسے کتابن ایک کلمہ، انزلہ ایک کلمہ، الیکا ایک کلمہ، اس طرح کلمات 3344 اس میں کلمات ہیں، اور 14071 اس میں حروف ہیں۔ اس پوری سورہ کے اندر 14071 حروف ہیں۔ اس سورہ کے اندر زیادہ تر مضامین آخرت اور نبوت اور رسالت سے متعلق ہے۔ اس سورہ میں زیادہ تر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد لوگوں کو، جو لوگ نہیں مانتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اس میں تخویف اور انذار، زیادہ سے زیادہ انذار ہے، اور ساتھ ساتھ پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات، ان کے واقعات کو بھی اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے جب بات نہیں مانی تو کیسا عذاب آ گیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم نے بات نہیں مانی تو کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ذکر ہے۔ تو کئی پیغمبروں کا ذکر اس میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آدھی سورہ سے زیادہ تر تو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور ان کی قوم کے نہ ماننے سے جو ان پر انجام اس کا ہوا، جو عذاب اس پہ اترا، اس کا ذکر کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ پرانی امتیں جو تھیں، جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کا جو انجام ہوا اس کو بیان کر کے یہ بتلانا مقصد ہے کہ اے انسانوں، تمہارے اوپر بھی یہ کتاب قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے، تم بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر خدا نخواستہ تم نے بات نہیں مانی تو نہیں ماننے والوں کا انجام تم کو سنایا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو جائے۔ یہ ہے ڈرانا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے اس میں سمجھایا گیا ہے کہ آپ امت کو اس میں ڈرائیں، ڈرانے کا انداز اس میں زیادہ اپنایا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیات نازل ہوتی تھی تو آپ کو فکر سوار ہو جاتی تھی کہ میں کیسے سمجھاؤں کہ لوگ میری بات مان لیں۔ مکہ کے اندر لوگوں کی اکثریت ایسی تھی جو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ مان نہیں رہے ہیں بلکہ جھٹلا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ تو مسلسل تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، مسلسل ستانے کی وجہ سے، آپ کو ستانے سے اتنی تکلیف نہیں تھی، خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ آپ کو جو ایذا اور تکلیف پہنچائی جا رہی تھی اس سے آپ کو پریشانی نہیں تھی، پریشانی آپ کو اس سے تھی کہ کل کو جب یہ نہیں مانیں گے تو ان پہ نہ عذاب اتر جائے، اس سے آپ کو پریشانی تھی۔ ورنہ آپ تو اس کے لیے تیار تھے، اگر کوئی ستا رہا ہے تو تکلیف اٹھانے کے لیے تیار تھے، مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگر آپ کو زبانی طور پہ ستایا جا رہا تھا، اشعار کہہ کے ستایا جا رہا تھا، ستانے کا تو بہت سا طریقہ ہے، صرف یہی نہیں کہ سامنے کھڑے ہو جائیں اور مارنے لگ جائیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ یہ ہے کہ اشعار کے ذریعے سے ایسی بات کہی جائے جس سے تکلیف ہو۔ تو آپ کو ہر طریقے سے
हर तरह सताया जा रहा था, आप उन सब के लिए तैयार थे, उससे आपको परेशानी नहीं थी। परेशानी अगर थी आपको तो इससे थी कि मैं जो अल्लाह का कलाम लेकर आया हूं, अगर ये उससे मान लेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता इन्होंने इनकार किया तो इसका बुरा अंजाम होगा और इनको अजाब दिया जाएगा। इनके अजाब होने से जो तकलीफ होगी वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसके लिए आप परेशान थे और आप हमेशा फिक्र में रहते थे कि ये मान जाएं, ये मान जाएं, ये मान जाएं। इस फिक्र में आपने गोया अपने आप को घुला दिया था। कुरान ने दूसरी जगह कहा है, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जान को हलाक कर देंगे इस बात की वजह से कि वो ईमान नहीं ला रहे। उनके ईमान न लाने से आपको जो परेशानी थी उसके लिए आप घुले चाह रहे थे, फिक्रमंद थे, रात रात को दुआएं कर रहे हैं, दिन भर उनके दरमियान टहल रहे हैं, तदबीरें कर रहे हैं, कैसे मान लें, कैसे मान लें, कैसे मान लें, इसकी फिक्र कर रहे हैं। और आपको कुढ़न होती थी, आपके दिल के अंदर एक तंगी होती थी कि ये नहीं मान रहे हैं। न मानने की वजह से आपको तकलीफ होती थी। ये बात समझ में आ गई आपको? उनके तकलीफ पहुंचाने से आपको तकलीफ नहीं थी, उनके न मानने से आपको तकलीफ थी। यह है आपकी रहमत, और आपके दिल में जो मोहब्बत थी उम्मत की, उस मोहब्बत की वजह से आपके दिल में जो नरमी थी, जो शफकत थी, उस शफकत की वजह से आप हर तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। लेकिन आपको तकलीफ थी, अगर आपके अंदर जो तंगी दिल में हो रही थी, परेशानी थी, तो वो इसकी कि ये मान क्यों नहीं रहे, इससे तकलीफ थी। तो उसका जिक्र इन आयात में किया गया है। ये सूरह मक्का की तमाम सूरतों में सबसे बड़ी सूरह है। इसके पहले जो सूरह खत्म हुई सूरह अनआम, वो भी बड़ी सूरह है बिलाशुबहा, और वो भी मक्की है। ये सूरह उससे भी बड़ी है। उसमें 165 आयात थी, इसमें 206 आयात हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये उससे बड़ी है। उसमें 12,000 हरूफ थे, इसमें 14,000 हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये सूरह उससे बड़ी है, और ये सूरह भी मक्का में नाजिल हुई। इसीलिए कहा जाता है कि मक्का में जितनी सूरतें नाजिल हुई उनमें सबसे बड़ी सूरह ये सूरह आराफ है, सूरह आराफ। और ये सूरह शुरू हो रही है हरूफ मुक़त्तआत से, अलिफ लाम मीम साद, इन हरूफ से ये सूरह शुरू हो रही है। इससे पहले जो भी सूरतें नाजिल हुई थी, इस सूरह के नाजिल होने से पहले, उसमें हरूफ मुक़त्तआत वाली सिर्फ 3 सूरतें थी, सूरह काफ, सूरह नून वल कलम और सूरह साद। ये 3 सूरह हैं जिसमें हरूफ मुक़त्तआत हैं, एक एक हर्फ, नून बस, इसी तरह साद बस, और काफ, काफ काफ से शुरू सिर्फ एक ही हर्फ है, काफ। तो ये 3 सूरतें ऐसी हैं जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एक हर्फ है। उसके बाद ये सूरह नाजिल हो रही है जिसमें हरूफ मुक़त्तआत से शुरू है, अलिफ लाम मीम साद। इसका माना क्या है? बस मुख्तसर बात ये ज़हन नशीं कर लीजिए कि इसका माना सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अगर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था तो वो भी हमें नहीं पता, बताया भी था कि नहीं बताया था हमें वो भी नहीं पता। लिहाजा हमारे लिए सिर्फ ये है, ये कहा जाए कि अल्लाह की जितनी किताबें हैं उन सब किताबों में अल्लाह का राज है। अल्लाह के राज में से ये एक राज है, अलिफ लाम मीम साद, जिस राज को कोई नहीं जानता। हमारे लिए इसमें इम्तिहान है कि कौन इसको तस्लीम करता है और कौन इसको नहीं तस्लीम करता, कौन इसको मानता है और कौन इसे नहीं मानता, ये देखना है। अगर हम इसे मानते हैं, इस पर ईमान लाते हैं कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसके बावजूद हम ईमान लाते हैं कि अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई है, बस इतना हमारे लिए काफी है। तो हमें यही एतकाद रखना है, यही यकीन करना है, यही ईमान रखना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, और इसका माना मतलब हम नहीं जानते। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब कुरान करीम की तशरीह करेंगे तो उस वक्त इसका राज भी हमारे सामने खोल दे। उस वक्त तक के लिए हमारे लिए राज है और हमको इस पर सिर्फ ईमान लाना है, इसके पीछे नहीं पड़ना है। चुनांचे पूरी उम्मत इस पर ईमान लाती रही है,
तमाम उलमाए किराम, तमाम साहबे किराम इस पर ईमान लाते रहे हैं और कोई इसके पीछे नहीं पड़ा। तो हमें भी इसके पीछे नहीं पड़ना है। इस सूर्य का नाम सूरह आराफ है। आराफ उर्फ की जमा है। आराफ उर्फ की जमा। उर्फ अरबी में कहते हैं बुलंद हिस्से को, जो हिस्सा बहुत बुलंद हो, बिल्कुल जाहिर हो, खुला हुआ हो, नुमाया हो, नजर आता हो, उस हिस्से को अरबी में उर्फ कहते हैं। जैसे पहाड़ की चोटी, पहाड़ तो नजर आता ही है, लेकिन जो हिस्सा सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद है, वो सबसे नुमाया है, सबसे ज्यादा जाहिर होता है, उस पहाड़ की चोटी को अरबी में उर्फ कहते हैं। इसी तरह मुर्गा है, मुर्गा का एक जिस्म है, उसके जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा वो होता है जिसको ताज कहते हैं। उसके सर पे निकला हुआ, बहुत से मुर्गों को आपने देखा होगा उसके सर पे रहता है, उसको कलगी कहते हैं। वो अरबी में उसको उर्फ कहते हैं। वो चूंकि उसके जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, सबसे ऊंचा हिस्सा होता है। तो इस सूर्य का नाम सूरह आराफ, चूंकि आगे चल करके चंद रुकू के बाद आराफ का जिक्र इसमें आया है। 46वीं नंबर आयत इसके आगे चल करके जो आएगी उसमें आराफ का जिक्र आया है। ये आराफ क्या है जिसका जिक्र आया है? हदीस में बताया गया है कि जो लोग नेकी करते हैं और इंसान बदी भी करता है, दोनों ही करता है, तो अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ किया जाएगा। तो इंसाफ की तरतीब ये होगी कि आमाल वजन किए जाएंगे। इसमें आया है वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन वजन किया जाएगा आमाल, और ये बिल्कुल हक है, ये हमको अकीदा रखना है कि आमाल वजन किए जाएंगे। अल्लाह ताला उस दिन तराजू कायम करेंगे। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, अल्लाह ताला फरमा रहे हम मवाज़ीन कायम करेंगे और उसमें सबका अमल तौला जाएगा। तो जिसकी नेकी का पल्ला भारी हो गया, नेकी ज्यादा हो गई और बदी कम हो गई, तो वो शख्स जन्नत में चला जाएगा। थोड़ी सी बदी हुई है तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देंगे। नेकी का पल्ला भारी हो गया, ज्यादा हो गया, अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेज देंगे। और अगर खुदा न खास्ता बदी का पल्ला भारी हो गया, वमन खफ्फत मवाज़ीनु, बदी का पल्ला भारी हो गया, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में भेज देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको समझाने के लिए यहां तक समझाया है कि जब दोनों पल्ले में इंसान के आमाल रखे जाएंगे, नेकी और बदी, उसको बहुत ही बारीकी से तौला जाएगा। शायद दुनिया वाले उस तरह तौल भी ना सकें जैसे अल्लाह ताला क्या उसका वजन होगा। हदीस में फरमाया गया है कि जूई के अंडे के बराबर भी अगर नेकी बढ़ गई तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेज दे। अब जूई के अंडे का वजन क्या हो सकता है? दुनिया वाले शायद वजन भी न कर सकें उसको, लेकिन हदीस में उसका जिक्र है कि नेकी और बदी दोनों वजन किए जाएंगे। इतना सा भी ज्यादा हो गया, एक जर्रे के बराबर भी नेकी ज्यादा हो गई, तो कहा जाएगा कि नेकी का पल्ला झुक गया, अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेज देंगे। और अगर उसी तरह हदीस में है और बदी का पल्ला जूई के अंडे के बराबर भी झुक गया, वो ज्यादा हो गया, तो वो जहन्नम में जाएगा। अब रह जाता है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर किसी की नेकी और बदी बिल्कुल बराबर हो गई, न ये ज्यादा है एक जर्रा के बराबर, न ये ज्यादा है, बिल्कुल बराबर, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? न नेकी ज्यादा न बदी ज्यादा, बिल्कुल बराबर, एकदम दोनों बराबर हो गए। तो ऐसे लोगों को रोक दिया जाएगा और ऐसे ही लोग आराफ के होंगे जिनका जिक्र इसमें आया है आराफ का, वो आराफ के ऊपर उनको रोक दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आपकी नेकियों ने, जितनी आपने नेकी की है उस नेकी की वजह से आप जहन्नम में जाने से तो बच गए, जहन्नम में जाने से तो बच गए, लेकिन जो बदी है आपकी, वो बदी भी इतनी ज्यादा है कि जन्नत में भी जा नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों बराबर है। तो उनको रोक दिया जाएगा, वो रुके रहेंगे। वो एक ऊंची दीवार होगी जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान में होगी, एक बिल्कुल बुलंदी पे, वहां पे ये लोग बैठे हुए होंगे और
उम्मीदें कर रहे होंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला जन्नत में लोगों को भेज रहे होंगे। जिनकी नेकी ज्यादा वो जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। ये बैठे हुए हैं, इनको जाने की इजाजत नहीं है। और इसी तरह जहन्नम में जाने वाले जहन्नम में भी जा रहे हैं, ये रुके हुए हैं, न ये जहन्नम में जा पा रहे हैं इसलिए कि इतनी बदी नहीं है जो नेकी से ज्यादा है, न ये जन्नत में जा पा रहे हैं इसलिए कि इतनी नेकी नहीं है जो इनकी बदी से ज्यादा। तो इनको रोक दिया गया। वो वहां से जन्नत वालों को भी देख रहे हैं और जहन्नम वालों को भी देख रहे हैं, बल्कि जन्नत वालों को सलाम कर रहे हैं, सलामुन अलैकुम, भाई आप पर सलामती हो, हमारा भी कोई इंतजाम कर दीजिए, हमको भी बुला लीजिए, हमारा भी कुछ कर दीजिए। उनसे दरखास्त भी करते रहेंगे, उम्मीद रखे रहेंगे। जहन्नम वालों को भी देखते रहेंगे कि उनके साथ क्या हश्र हो रहा। आखिर में जो हश्र होगा इनका वो हम बताएंगे आपको। फिलवत इनको रोक दिया जाएगा जन्नत में जाने से और ये ऊंची जगह पे होंगे। रिवायात में ये भी आता है कि उस आराफ में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में और जिहाद करके जान दे दी अल्लाह की राह में। तो कितनी बड़ी नेकी है, ये तो बहुत बड़ा अमल है, बहुत ऊंचा अमल है। ऐसे अमल वाले भी वहां होंगे, लेकिन अभी जन्नत का उनका फैसला नहीं हो रहा होगा। क्या मामला रहेगा उनके साथ? उनके साथ मामला ये होगा कि उन्होंने जिहाद तो किया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा अमल किया, लेकिन जिहाद के लिए जब गए तो अपने माँ बाप से इजाजत लेकर नहीं गए, बगैर इजाजत के चले गए थे। बगैर इजाजत की वजह से, जाने की वजह से उनके माँ बाप उनसे नाराज थे। इस नाराजगी की वजह से, ये नाराजगी का अमल ऐसा होगा कि इस अमल की वजह से उनको जन्नत में जाने से रोक दिया जाए। हालांकि उनका अमल, नेकी का अमल बहुत ऊंचा अमल था कि उन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में और जिहाद करके अल्लाह की राह में जान भी दे दी। लेकिन इस जान देने के बावजूद चूंकि हम अपने माँ बाप को नाराज करके गए थे जिहाद में, अपने माँ बाप को नाराजगी की वजह से उनको भी रोक दिया जाएगा। वो आराफ में बैठे होंगे, जन्नत में जाने वालों को देख रहे होंगे कि जा रहे हैं, जहन्नम में जाने वालों को देख रहे होंगे, लेकिन इनको रोका हुआ है, ये रोके हुए। इसी तरह बहुत से लोग होंगे जो बज़ाहिर हमारे हिसाब से बड़ी बड़ी नेकी करने वाले होंगे, लेकिन वो भी आराफ में रोक दिए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनकी कोई ऐसी बदी होगी, कोई ऐसी गलती होगी, कोई ऐसा बुरा अमल होगा जिस बुरे अमल की वजह से वो नेकी के बावजूद उनको रोक दिया जाएगा। जब ऐसी बात है तो हमारे लिए बड़ी डर की बात है कि हम, कोशिश तो हर इंसान की यही होनी चाहिए कि हमें जन्नत में दुखूल अव्वली हासिल हो जाए, यानी पहले ही मरहले में हम हो जाएं। जैसे आजकल एडमिशन लेने वाले एडमिशन जब लेते हैं तो बोलते हैं एकदम पहले ही मरहले में मेरा नाम आ गया, बहुत खुश होते हैं। और कुछ लोगों का सिफारिश से होता है, कुछ लोगों का दूसरे मरहले में होता है, तीसरे मरहले में होता है, कुछ लोग रह जाते हैं। ये दुनियावी मिसाल समझने के लिए हमने दी। जन्नत में दुखूल अव्वली, पहले ही मरहले में बगैर किसी रोक टोक के हमारा नाम आ जाए, ये तो सबसे अव्वल बात है, सबसे अफजल बात है। ऐसा हो जाए तो ये सबसे बेहतर है। और ये मरहला तो बहुत ही खतरनाक रहेगा कि सबसे ऊपर हमको कर दिया गया, सब लोग देख भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं उनको, लेकिन हमें जन्नत में जाने से रोक दिया गया है अपने तमाम अच्छे अच्छे अमाल के बावजूद। इसलिए कि जब उनको वजन किया जा रहा है तो वजन करने में हमारी नेकी हमारी बदी से बढ़ नहीं पा रही है। और नेकी में का वजन जो होता है वो किस चीज से बढ़ता है? इखलास से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जोहर की नमाज सारे लोगों ने पढ़ ली, जब वजन किया जाएगा तो सबकी नमाज एक सा होगी, बराबर होगी। तो सभी लोगों ने एक ही मस्जिद में एक ही इमाम के पीछे जोहर की नमाज पढ़ ली, इसलिए सबकी नमाज एक सा होगी, एक ही वजन की होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि नमाज को जो वजन किया जाएगा तो इसमें वजन कहां से पैदा होगा? इखलास से पैदा होगा। किसने कितने इखलास से नमाज पढ़ी है उससे वजन पैदा होगा। हो सकता है कि इसी मजमा में जितने लोगों ने नमाज पढ़ी, किसी की नमाज का वजन बहुत ज्यादा हो और किसी की नमाज का वजन बहुत कम हो। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स की नमाज उसके मुंह पे मार दी जाए कि तुम्हारी नमाज कबूल ही नहीं है, इसलिए कि तुमने नमाज में ऐसी ऐसी हरकतें की। ऐसा भी हो सकता है। तो वहां जो वजन होता है वो जाहिरी सूरत से नहीं होता है, बल्कि इखलास से होता है। इसीलिए बहुत से लोग आएंगे
जिनका बहुत अमल होगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फजअलनाहु हबाअ मंसूरा, हम उनको हवा मंसूरा कर देंगे, जर्रा बना के उड़ा देंगे, कुछ नहीं है। वो कहेगा मैंने ये किया, मैं तो दिन भर मस्जिदी में रहता था, मैं तो ये करता था, मैं तो वो करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे सब कुछ करते थे, इखलास नहीं था, लिहाजा इसमें कोई वजन नहीं है, एकदम कोई वजन नहीं है। वह तराजू पे रखा जाएगा, कुछ वजन ही नहीं नजर आएगा। तो अमाल में वजन पैदा करना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस सूरह आराफ के अंदर इन्हीं चीजों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई गई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानो, उनको रसूल मानो और उनकी हिदायत पर अमल करो। उनकी हिदायत जिस तरीके से आ रही उस तरीके से अमल करो तो तुम भी कामयाब लोगों में आ जाओगे। और अगर उनकी बात नहीं मानी तो नाफरमानों में आ जाओगे। और नाफरमानों के किस्से बयान किए गए हैं तफसील के साथ। हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र इसमें आया है। और शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने, उन्होंने बहुत समझाया, उनकी कौम ने बात नहीं मानी तो वो भी अजाब में गिरफ्तार हो गए। अब देखिए अलिफ लाम मीम साद के बाद किताबुन उनज़िला इलैक, ये एक अजीम किताब है। अल्लाह ताला इस कुरान करीम के बारे में फरमा रहे हैं अलिफ लाम मीम साद किताबुन उनज़िला इलैक, ये एक अजीम किताब है, जलील बुजुर्ग बड़ी किताब है। उनज़िला इलैक, जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। ऐ मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर ये किताब, एक अजीम किताब नाजिल की गई है। जब अजीम किताब नाजिल की गई है तो ये अजीम किताब किस लिए नाजिल की गई है? ताकि आप लोगों को समझाएं, लोगों को डराएं, बताएं, लोगों को नाफरमानी के अजाब से डराएं और फरमाबरदारी की चीजों को बताएं। और फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन, आपके दिल में किसी तरह की तंगी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं, आपके दिल में किसी तरह की तंगी नहीं होना चाहिए। तंगी का मतलब क्या है? आपको फिक्र होती थी, आप सोचते थे मैं समझा रहा हूं ये मानते नहीं, मैं समझा रहा हूं ये मानते नहीं। और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ रहा है कि आप समझाइए, आप समझाइए, आप डराइए। मैं डरा रहा हूं, ये डर ही नहीं रहे, मैं समझा रहा हूं, ये समझ ही नहीं रहे। इससे आपको, आपके दिल में तंगी थी, परेशानी थी। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन, आपके सीने में, आपके दिल में इससे कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि हमने जब इसको नाजिल किया है आपके ऊपर तो हमने उसका इंतजाम भी कर दिया है। आपके रब की तरफ से ये किताब अजीम नाजिल की गई है तो आपके रब ने इसका इंतजाम भी कर दिया है। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप समझाते रहिए, आप तबलीग करते रहिए, डराते रहिए। मानने वाले मानते हैं, बहुत अच्छा, नहीं मानने वाले अगर नहीं मानते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए कि आपका फर्ज तो पहुंचा देना है, आप पहुंचा दीजिए। बस मानना नहीं मानना ये उनका अमल होगा। अगर नहीं मानेंगे तो उसका नुकसान आपको नहीं होगा, उसका नुकसान उनको होगा, आपको नहीं होगा। फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन, आपके सीने में, आपके दिल में उससे कोई तंगी नहीं होना चाहिए। लितुनज़िरा बिही, ये किताब हमने क्यों नाजिल किया आपके ऊपर? सुनिए उसकी वजह अल्लाह ताला बता रहे हैं। उनज़िला इलैक, आप पर यह किताब अजीम नाजिल की गई है। लितुनज़िरा बिही, ताकि आप इस किताब के जरिए से लोगों को डराएं। आपके ऊपर किताब नाजिल की गई है इसलिए कि आप लोगों को डराएं। देखिए डराने का हुक्म दिया जा रहा, इसलिए नाजिल ही की गई किताब आपके ऊपर ताकि आप इसके जरिए से लोगों को डराएं। चुनांचे आप इनकी आयत को पढ़ पढ़ कर डराते थे, बताते थे। और सुनने वाले, मानने वाले शुरू में तो नहीं, शुरू में तो इनकार करते रहे लेकिन एक वक्त आया कि सबको मानना पड़ा, सब लोगों ने मान लिया उसको। वज़िक्रा लिल मोमिनीन, और मोमिनीन ईमान वालों के लिए इसमें नसीहत है, ईमान वालों के लिए नसीहत है। बहुत बड़ी बात, बड़े प्यार से अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए अलग से जिक्र किया कि जो ईमान वाले हैं उनके लिए इसमें नसीहत है। ईमान वालों को इससे नसीहत हासिल करना चाहिए। इस पूरी किताब में बहुत सी नसीहत की बातें हैं और इबरत की बातें हैं। बड़े बड़े पुराने जमाने के लोगों के किस्से हैं, उन सब में नसीहत है। एक एक किस्से में हजारों नसीहतें मौजूद हैं। तो उन नसीहतों को ईमान वालों को मानना चाहिए और उससे नसीहत हासिल करना चाहिए। उसके बाद फिर
اب سارے عالم کے انسانوں کو، یہ تیسری آیت ہے، تیسری آیت میں سارے عالم کے انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ہر انسان کو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے انسانوں، اے لوگوں، جتنے لوگ جن کو ہم نے پیدا کیا سب کے سب سن لو کہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی. رب کا لفظ آنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہارا رب ہے. جب وہ تمہاری تربیت کرنے والا ہے تو تمہاری تربیت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، اس لیے تم اتبعو، اسی کو مان کر چلو. دیکھیں کتنے پیار سے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کیا. پہلے تو رسول سے کہا کہ آپ پہ نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ڈرائیے اور آپ دل تنگ بالکل نہ ہوئیے. اب اس کے بعد براہ راست سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، تم اسی کو مان کر چلو، اسی کی پیروی کرو، اسی کی بات مانو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے اللہ کے سوا کسی بھی اپنے دوست کی بات ماننے کے پیچھے مت رہو. اللہ نے جو بات کہہ دی، سب سے بڑا دوست تمہارا اللہ ہے، وہ رب ہے تو سب سے بڑا دوست تمہارا اللہ ہے. لہذا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا اپنے کسی بھی دوست کو مان کر کے اس کی بات مان کر مت چلو. دوست کی بات مان کر نہیں چلنے کا مطلب جو بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو تو وہ تمہارے رب کی بات نہیں ہوئی، وہ تمہارے دوست کی بات ہوئی. تو اپنے رب کے سوا، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی کو دوست بنانا ہی صحیح نہیں، رب کے علاوہ کسی کو دوست بنانا صحیح نہیں، اور ان کی بات کو ماننا بھی صحیح نہیں ہے. اور اس لیے بہت ہی واضح طور پر اس آیت کریمہ میں سورہ اعراف کی یہ تیسری آیت ہے، اس آیت میں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ فرما دیے تمہارے رب کی طرف سے، تمہاری طرف، تمہارے طرف جو نازل کیا گیا. تمہارے طرف کا مطلب کیا ہے؟ رسول کے واسطے سے. ظاہر ہے کہ ہم پر براہ راست تو قرآن نہیں اتر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے انزل الیکم، تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی رسول کے واسطے سے نازل کیا گیا ہے. لہذا تم اسی کی پیروی کرو، اسی کی بات پر چلو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اپنے کسی بھی دوست کی بات اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر اپنے کسی بھی دوست کی بات کو مت مانو. یعنی نہ شیطان کو دوست بناؤ، جناتوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، کسی کو بھی. انسان میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، غلط دوستی، غلط مشورہ دے دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے غلط مشورہ دے دیتے ہیں. انسان غلط بات پہ چل پڑتا ہے اپنے دوست کی بات پہ، تو اس کی بات پہ نہیں چلنا ہے، اللہ کی بات پہ چلنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو کچھ تمہارے طرف اتارا گیا ہے، تم پر اتارا گیا ہے، اس کی پیروی کرو. ہم پر جو اتارا گیا ہے اس میں یہ قرآن کریم ہے. یاد رکھیے اس قرآن کریم کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں وہ بھی اس پہ شامل ہیں. ہم پہ جو کچھ نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول بھی ہے. اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، جو بھی کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے تھے. لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے. لہٰذا اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ قرآن کو بھی پوری طرح ماننا ہے اور حدیث کو بھی پوری طرح ماننا ہے. اس میں بہت ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، قرآن اور حدیث ان کو چھوڑ کر کے اب کسی چیز کی پیروی نہیں کرنا. بہت ہی وضاحت کے ساتھ وَلَا تَتَّبِعُوا منع کر دیا. قرآن کو ماننا ہے، قرآن کی باتوں پہ چلنا ہے اور حدیث کی باتوں پہ چلنا ہے، اور ان کے سوا لا تتبعوا، کسی چیز کو نہیں ماننا ہے، کسی چیز پہ نہیں چلنا. ان کے سوا کا مطلب جو باتیں اس کے خلاف ہیں اس کو نہیں ماننا ہے، اور جو باتیں اس کے موافق ہیں، اس کے حق میں ہیں، اسی سے نکالی ہوئی ہیں. قرآن اور حدیث تو ایک سمندر ہے، گہرا کنواں ہے، اس کے اندر موتی بہت ہے. ان بڑے بڑے لوگ جو اس کے شناور ہیں وہ اس کے اندر سے موتی نکالتے ہیں، نکال کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم سمندر میں غوطہ لگا کے موتی نکالیں، لیکن کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے علماء کرام، وہ اس کے اندر گہرائی میں گھستے ہیں اور اندر سے موتی نکال کر کے لا کر کے پیش کرتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کو مانیں. وہ اسی قرآن کی بات ہے، اسی حدیث کی بات ہے، اسی کے اندر سے نکالا ہوا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قلیلا ما تذکرون، ہم تم کو اتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں لیکن افسوس تم اتنا سمجھتے نہیں.
कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कम ध्यान देते हो। हम इतने अच्छी तरह समझा रहे हैं, इतनी वजाहत से समझा रहे हैं, और तुम्हारा क्या हाल है? कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कम ध्यान देते हो, बहुत कम। ये अल्लाह ताला की शिकायत सही है कि नहीं? कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कलील, बहुत कम ध्यान देते हो, बहुत कम ध्यान देते हो। बेशक जब हम लोग अपने अहवाल पे गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अल्लाह ताला की बातों पे बहुत कम ध्यान देते हैं, रसूल की बातों पे बहुत कम ध्यान देते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी में मस्त हैं। कैसे? जो दुनियावी जिंदगी हमारी है उसी में हम मस्त हैं। बस ये देख रहे हैं कहाँ से खाना मिले, कहाँ से पैसे मिले, कहाँ से आराम मिले, कौन सा अच्छा मकान मिल जाए जिसमें हम सोया करें, कौन से अच्छे दोस्त मिल जाए जिनके साथ रात और दिन गुजारा करें, कहाँ से अच्छे कपड़े मिल जाएं जो उसको पहन पहन कर हम लोगों के सामने आया करें। ये मिजाज बना हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला उसी को कह रहे हैं, कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कम ध्यान देते हो। हम इतने प्यार से मोहब्बत से समझा रहे हैं, तुम बहुत कम ध्यान देते हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये आयत हमें हिदायत दे रही है, सबक दे रही कि ऐ गोया का अल्लाह ताला फरमाए, मेरे बंदो मेरी बातों की तरफ तवज्जो दो, ध्यान दो और अमल करने पे आ जाओ। हम लोग इंशाअल्लाह नियत कर लें कि ये सूरह शुरू हुई है और इस सूरह में नाफरमानों को अजाब से डराया गया है, तो हम अपने आप को नाफरमानी से बचाएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जो कुछ हो सकेगा उसको करेंगे। यहां तक पहुंच के अब हम इसको बस करते हैं। 3 आयतें मुकम्मल हुई जिसमें आखिर में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कम ध्यान देते हो, बहुत कम ध्यान देते हो। तो हम इस पे गौर करते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, बहुत कम तवज्जो करते हैं। अभी के जो सख्त हालात हैं पूरी दुनिया के, ऐसे हालात में मुसलसल ईमान वालों के या दूसरे इस तरह के लोगों पे जो बमबारी चल रही है और मुसलसल ये लोग तकलीफ में, सख्त अजाब में मुब्तला हैं, हम लोग आपस में बातें करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कर सकते हैं, ये कहते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये कि हम लोग दुआ भी नहीं करते। सही है, हम लोग दुआ भी नहीं करते। तो क्या ऐसे ही जिंदगी गुजरेगी? हम ऐसे ही गफलत के साथ जिंदगी गुजारेंगे? हमारे ईमान वाले भाई की जान जाती रहे और हम अपनी मस्ती में जिंदगी गुजारते रहें, कहाँ से अच्छा खाना मिले, कहाँ से अच्छे सोने मिले, इसी फिक्र में रहें, इसी में जिंदगी गुजारते रहें। ईमान की तो पहचान ये बताई गई है कि अगर मगरिब में, अगर पूरब के आखिरी हिस्से में किसी ईमान वाले भाई को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है और पश्चिम में रहने वाला, सबसे आखिर में रहने वाला, अगर उसे तकलीफ नहीं पहुंची उसकी तकलीफ से, तो वो ईमान वाला नहीं है। बात तो यहां तक कही गई है। तो ईमान वाले सब भाई भाई हैं। और ये भी कहा गया कि ईमान वाले एक जिस्म की तरह हैं। ईमान एक जिस्म है और बाकी सब उसके आज़ा हैं। तो अगर हमारी एक उंगली में तकलीफ हो तो क्या सारा जिस्म इत्मीनान से रहता है? ऐसा नहीं है। आंख में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है, पूरा जिस्म महसूस करता है। आंख सिर्फ नहीं सोती, पूरा जिस्म सो जाता है। लेकिन आंख में तकलीफ है तो पूरा जिस्म नहीं सो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ तकलीफ में जान पे जान जा रही है और हम बेफिक्री जिंदगी गुजार रहे कुछ भी एहसास हमें नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं वो तो करना चाहिए। आज से आप हजरात ये तय कर लें, जिम्मेदारी अपने अंदर ले लें, क्योंकि क़यामत में हमको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ सवाल नहीं होगा, सवाल होगा और जबरदस्त सवाल होगा। हर मस्जिद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और खास तौर से मस्जिद अक्सा, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो हम यहां से क्या हिफाजत कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। दुआ, वो तो हम कर ही नहीं रहे। तो एक वक्त निकालिए, एक वक्त मुकर्रर कीजिए अपने अपने हिसाब से। जिसके पास सुबह को वक्त हो, सुबह का वक्त बनाए। जिसके पास शाम को हो, शाम का, मगरिब बाद, इशा बाद, सोने के वक्त, फजर के वक्त, जैसे भी हो जिससे जो वक्त हो सके वक्त निकालिए। आधा घंटा होना तो चाहिए था 1 घंटा, लेकिन चलिए
1 घंटा ना सही, आधा ही घंटा सही, आधा घंटा वक्त निकालिए, तन्हाई में बैठिए, अल्लाह के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, या अल्लाह या अरहमर राहिमीन आसानी का मामला फरमा दीजिए। वो मुसलसल आपके कलमे को बदन करने के लिए लड़ रहे हैं, आपके मस्जिद की हिफाजत के लिए जान पे जान दे रहे हैं, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा दीजिए, उनकी मदद फरमा दीजिए। ये दुआ तो कर सकते हैं, तो ये दुआ करने के लिए अपने औरतों को बताइए, अपने मर्दों को बताइए, दोस्तों को बताइए, इसके लिए वक्त मुकर्रर कीजिए, दुआएं कीजिए। अब तक चूंकि हमारे हाथ नहीं उठे दुआओं के लिए, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए अब तक हमारे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। और हम लोग सिर्फ खबर सुनने के चक्कर में, खबर सुनने के लिए बहुत शौक है, खबर यहाँ बैठे सुन रहे हैं, वहां बैठे सुन रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए उसके लिए हम किसी तरह तैयार नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप इस मजलिस में आज ये भी ठान लीजिए कि इंशाअल्लाह हम दिल से दुआ करेंगे, तन्हाइयों में दुआ करेंगे, रो रो के दुआ करेंगे, औरतों को बताइए। और एक चीज है, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा हर शख्स मामूल बना ले, कम से कम 100 मरतबा पढ़ने का, किसी भी वक्त 100 मरतबा पढ़ने का। थोड़ा सा रुक जाइए। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हर शख्स एक मामूल बना ले 100 मरतबा, इससे ज्यादा जिससे हो सके वो पढ़े, वो मना नहीं है, बेहतर है 500 बना ले, लेकिन 100 तो हर शख्स लाजिम कर ले, इस नियत से कि इसके पढ़ने से हमारे गुनाह माफ होंगे, हमारे गुनाह माफ होंगे तो अल्लाह की मदद उतरेगी। और हम तो अभी उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि हम लोग अपने गुनाहों को छोड़ने की भी फिक्र करें। गुनाहों को छोड़ने की फिक्र करेंगे तो मदद जल्दी उतरेगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज से इसका एहतमाम करें। नंबर 1, दुआओं का एहतमाम करें, आधा घंटा इसके लिए वक्त निकाल लें, और यह आयत करीमा पढ़ने के लिए वक्त निकाल लें। किसी भी वक्त, सुबह से शाम तक 24 घंटे में किसी भी वक्त आयत करीमा पढ़ें। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत ही दुखे दिल के साथ आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। मुझे जब ख्याल आता है तो रात भर नींद नहीं आती इस फिक्र को, इन हालात को देख करके क्या हो रहा है, और उसमें ये हमारी जो गफलत है उसको देखकर और अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह के वास्ते इस गफलत को खत्म करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिहहुम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम
وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ شہناز بیگم بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما دیجئے، اور اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی تمام جائز ضروریات کو پوری فرما دیجئے۔ اس میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما دیجئے، جن کی جو ضروریات ہیں ان کی پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو پورے عالم کے حق میں دعا کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ پورے عالم کے حق میں ہم کو دعا کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں دعا کی توفیق نہیں مل رہی ہے، دعاؤں میں جی نہیں لگ رہا ہے۔ یا اللہ ہم اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر رہے ہیں، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا قریبی بنا لیجئے، دعا کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، دعاؤں کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دعاؤں کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ دعاؤں کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجئے، بدعمالیوں کو معاف فرما دیجئے۔ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ جن کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔